Yes, hello students, how are you? A very warm welcome to you all to this recorded lecture. So today in this video lecture, we are going to do is radius ratio and types of ionic solids. So let's start with radius ratio. So now, what is radius ratio? So radius ratio is just a ratio of cation. It is the ratio of radius of cation. Just a minute. To that of radius of anion. So you can see here R plus R minus radius of cation to that of radius of anion. What is the requirement of radius ratio? ये क्या करना, क्या जरूरत क्या है इसका? So in any ionic compound with help of radius ratio, we can predict the coordination number, the types of voids which are present in that compound. We can also we can also give the geometrical shapes of ionic crystal. So for predicting all these things, we need radius ratio. So now you can see here, if your radius ratio is less than 0.155, coordination number is 2, एंड ये कैसा रहेगा? वो ये जो स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यानी कैसा होता है? लीनियर टाइप ऑफ पैकिंग. Voids will be linear. If your radius ratio is between 0.155 and 0.255, so coordination number 3 रहेगा. और यहाँ पे कैसे voids बनेंगे? Triangular planar voids. If it is between 0.255 and 0.414, coordination number is 4. And if coordination number is 4, it is tetrahedral void. Tetrahedral voids are made up of 4 atoms. If it is between 0.414 and 0.732, then coordination number is 6. It is octahedral. But obviously 6 atoms से octahedral voids बनता है. If it is between 0.732 and 1, then coordination number is 8 and it will be a cubic. कैसा रहेगा? Void will be a cubic void. If it is 1 or greater than 1, so coordination number will be 12 and it will be a CCP or HCP packing. Okay, all of you. So this was all about radius ratio. अभी इसके MCQs हम लोग next video में solve करेंगे. But सब लोग को ये टेबल को बाय हार्ट करना है. You will write down this table 2 times. You will by heart it and come for next lecture. I'm going to ask you. Yes, so all of you, so this was all about radius ratio. Now, let's move on to next. That is the relation between the nearest neighbor distance, which is denoted by D, edge length and radius of sphere. ठीक है, सो ये सिंपल क्यूब के लिए है. दिस इज फॉर फेस सेंटर्ड एंड दिस इज फॉर बॉडी सेंटर्ड. सो ये कैसे रिलेशंस आए हैं फॉर्मूला, वो मैं तुम लोग को अभी आगे बताती हूँ. सो इफ यू हैव अ सिंपल क्यूब, सो सिंपल क्यूब में क्या होता है? एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर्स. एटम इज प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ये वाला एच लेंथ कंसिडर किया, ये वाला. ठीक है, सो ये
इफ आई हैव दिस एज, ये वाला ए और बी, तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक एटम है और एक एटम यहाँ पे है, ठीक है। नाउ दिस इज ए एज लेंथ, एंड ये जो डिस्टेंस है वो आर है, और इन लोग इधर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडीइंग इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। So who is the neighbor? They are the nearest neighbor, ना? They are the nearest neighbor. ये neighbor है, ये neighbor है एक दूसरे से. These are the neighbors. तो मैंने ये वाले को कंसिडर किया है, तो ये दोनों नेबर्स है, मीन्स यहाँ पे दिस इज नथिंग बट डी, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इज डी। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, डी इज इक्वल टू ए, और आई विल राइट डी इज इक्वल टू 2r। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, सिंपल के लिए। डी इज इक्वल टू ए, या फिर जो भी है आर इज इक्वल टू a/2। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी रिलेशन स्टडी किया है प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड, दिस वाज फॉर सिंपल। ना बॉडी सेंटर्ड में कैसा होता है, एटम्स जो होते हैं आर प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर, बट बॉडी सेंटर्ड का बराबर से शेप चेक करो, वो एटम्स जो होंगे वो कैसे होते हैं, आई जस्ट शो यू। एज वाले एटम्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, you can see here ये BCC structure है। now here these atoms are not connected, you can see gap is present, gap is present, they are not connected, so they are not neighbor। but वो इससे connected होता है ना, center atom से connected है, ये इससे connect है, ये इससे connect है, ये इससे connect है, so they all are connected through a center atom। but edge वाले atoms एक दूसरे से connected नहीं होते हैं। सो नेबर वाले भी जो नेबर एटम्स है वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होने चाहिए। सो दिस एंड दिस इज नेबर, दिस एंड दिस इज नेबर, दिस एंड दिस इज नेबर। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। सो जैसे हम लोग ने वहां पे आर डिराइव किया था, आर एंड ए का रिलेशन डिराइव किया था, सिमिलर तभी हम लोग ने क्या किया था, बॉडी डायगोनल कंसिडर किया था, बॉडी डायगोनल। दिस इज द कॉर्नर वाला एटम और ये सेंटर ऑफ बॉडी वाला एटम है, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर अगर मैं देखूंगी तो ये दो एटम्स जो है दिस एंड दिस इज नेबर, और दिस एंड दिस इज नेबर, ठीक है। ये कॉर्नर एटम और सेंटर एटम क्या है, एक दूसरे के नेबर्स है। सो दिस इज द डी, ये जो डिस्टेंस है नेबर्स के बीच में का दैट इज डी, या फिर मैं ये वाला जो है वो नियरेस्ट नेबर है। Yes, all of you, so we already know what is the relation between R and A, that is 4R is equal to A√3 for body centered cube। So अभी मुझे इसको 2R करना है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो ये हो जाएगा 2R दैट इज इक्वल टू A√3/4, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर ऐसा लिख सकती हूँ, R इज इक्वल टू A√3 बाय, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। सो हियर इट विल बी 2 ना, मैंने मिस्टेकनली लिख दिया 4, so it will become what, 2 2s are 4, so ये 4 हो जाएगा। so this is our one relation।
ठीक है, नाउ 2r इज नथिंग बट d, सो d मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, d इज इक्वल टू a√3/2। तो ये हो गया बीसीसी के लिए। तो मुझे ये दोनों भी रिलेशंस मिल गए। नाउ विल डू इट फॉर एफसीसी। तो नाउ ऑल्सो फॉर एफसीसी अपने को पता है कि जो एटम्स होते हैं एज वाले वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट फेस वाले एटम्स कनेक्टेड होते हैं। यस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दो स्ट्रक्चर्स। सो मैं यहाँ पे एक फेस बना लेती हूँ। दिस आर द कॉर्नर एटम्स, and corner atoms are connected with face center atom। मेरा ये थोड़ा सा गलत गया है ड्राइंग। ठीक है, सो ये कनेक्टेड है, ये और ये नेबर 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 है। सो एफसीसी में ये मैंने डायगोनल बना लिया। दिस इज द कॉर्नर एटम्स। ये बीच में क्या है, आर है, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर। सो एफसीसी में 4r इज a√2। यस ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द नेबर, दैट इज दिस डिस्टेंस d, और यू कैन ऑल्सो टेक दिस डिस्टेंस, दिस इज d। सो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, d इज इक्वल टू 2r। तो मुझे इसको 2r करना है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, डिवाइड बाय 2 करती हूँ। तो ये हो जाएगा 2r a√2/2, बोथ साइड पे डिवाइड करूंगी मैं 2 से। तो इसको मैं फर्दर ऐसा लिख सकती हूँ, a r इज इक्वल टू a√2/4। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला को मैं 2r के जगह पे मैं d सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, एंड आई विल राइट। So these are the two formulas for FCC which I have derived. So we can just have a look in that table. तो ये फॉर्मूला, दोनों भी फॉर्मूलाज क्या हो गया है मेरा, डिराइव हो गया है, this and this। Okay, so in next video we'll solve some MCQs on this formulas। So फिलहाल सिर्फ theory समझो इसका, and you have to study this theory। You have to write down, you have to by heart this table। ये रेडियस रेशो वाला टेबल को तुम लोग को 2 times लिखना है, plus you have to learn this and come for next lecture। Similarly, you will write this formulas 3 times, and you will learn this and come for next live lecture। Okay, now next we are going to study is structure of simple ionic compound। सिंपल आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। सो आयोनिक पहले हम लोग करेंगे ए बी टाइप का आयोनिक कंपाउंड। सो उसके 3 है, रॉक सॉल्ट, सीशियम क्लोराइड एंड जिंक ब्लेंड। सो विल स्टडी दिस 3 इन डिटेल। सो yes all of you, so we'll start with NaCl type of structure। so in NaCl type of structure, so here you can see on screen, this is NaCl type of structure। now Na plus जो है, it is smaller in size because it is cation। cation usually small होता है size में, so it goes in voids। okay, और Cl minus जो है, it is anion, larger in size। so ये क्या करता है, अरेंजमेंट करता है एटम्स का। ठीक है, so you can see here Cl is present on corners and on the center of face। so Cl minus जो है,
इट इज हैविंग FCC स्ट्रक्चर, और Na प्लस जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ एवरी एज, एवरी एज के सेंटर में है, देखो। सो कौन सा void है ये? Yes, all of you, which void it is? And also it is present in the center. So it is occupying octahedral void. ठीक है। अभी Na प्लस जो है FCC है, Cl माइनस जो है वो FCC है, मीन्स इट इज 4, एंड सिंस दिस इज 4, Na प्लस भी कितना रहेगा? 4। सो दोनों का अगर मैं स्टोइचोमेट्री देखूंगी, रेशो लूंगी स्टोइचोमेट्री का, सो इट विल बी व्हाट, 1:1। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। फॉर्मूला क्या बनता है रॉक सॉल्ट का? NaCl। ओके, नाउ विल चेक आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, Cl माइनस का, Cl minus is here. So it is surrounded by 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसा ही एक ऊपर रहेगा ना दूसरे इसका। सो Na प्लस का, सॉरी, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है? 6 है। अभी Na प्लस का देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? दिस इज Na प्लस, या फिर मैं ये वाला Na प्लस ले लेती हूँ। इट इज सराउंडेड बाय 1, 2, 3, 4, ऐसा ही यहाँ पे एक रहेगा 5, और इसके अपोजिट में एक रहेगा, सो इट इज ऑल्सो 6। so this is very important information. Coordination number of Na plus and Cl minus is 6:6, दोनों का भी coordination number 6 है। So now you can see here octahedral voids जो होते हैं, जो इसमें Na रहता है, वो कैसा होता है देखो। सो ये तुम्हारा A लेयर है क्लोरीन का, सॉरी Na का, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज है, एंड दिस इज बी लेयर। ठीक है, सो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड विच इज मेड अप ऑफ Na प्लस। ठीक है, तो ये ऐसा शेप होता है। ये जो 3 है वो ये वाले यूनिट सेल के हैं, और ये जो 3 है वो बाजू वाले यूनिट सेल के रहेंगे। सो ऐसे जो वॉइड्स है वो एवरी एज के सेंटर में अपने को देखने मिलेगा। एंड ये जो सेंटर वाला है, यहाँ पे ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 से क्या मिलता है? 6 जो है वो मिला के क्या करते हैं यहाँ पे? ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं, और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है? जाके Na प्लस सिचुएट हो जाता है। ओके, नाउ we'll see the relation between the RNA plus, RCl minus and A. So अभी हम लोग ने देखा, मैंने एक एज कंसिडर किया है। नाउ इन दिस एज कॉर्नर जो है वो Cl ऑक्यूपाई करता है, सो दिस इज RCl माइनस, दिस इज RCl माइनस, और सेंटर में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सेंटर में क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एंड दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय Na प्लस। ठीक है, तो अगर मैं A देखूंगी, दिस इज नथिंग बट A, दिस इज एज लेंथ, ये H की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ तुम लोग को। सी, दिस इज द H, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस H, ये H के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ये क्या है? Na है,
सो इधर क्या होगा, RNA प्लस RNA प्लस, दिस इज Cl RCl माइनस एंड दिस इज RCl माइनस। सो ये पूरा मिला के क्या बनाते हैं, A बनाते हैं, एज लेंथ। सो नाउ A कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 2 RCl माइनस एंड 2 RNA प्लस। मैंने 2 को बाहर निकाल दिया। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। you have to you have to by heart this formula, write it 2 times and by heart this formula. नाउ अगर मुझे नियरेस्ट नेबर के बीच में और ए के बीच में रिलेशन निकालना है, तो नियरेस्ट नेबर कौन है, दिस आर द नियरेस्ट नेबर, दिस इज डी and you can say this is D. So D is equal to what, A by 2. Okay, so that is equal to RCl minus plus RNA plus. तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया है जिसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ओके, now next is cesium chloride. Next compound is cesium chloride. So you can just see here cesium chloride. Cesium chloride is consisting of atoms in the center and one atom in the atoms in the corner and atom in the center. So 8 atoms on the corner and 1 in the center. So यहाँ पे Cl माइनस जो है वो अरेंजमेंट करेगा और Cs प्लस जो है वो सेंटर में वॉइड में जाएगा। सिंस सीशियम जो है वो लार्ज है साइज में क्लोरीन से, बट ये जो वॉइड होता है इधर बीच में वो कौन सा वॉइड होता है, क्यूबिक वॉइड होता है, एंड क्यूबिक वॉइड इज द लार्जेस्ट वॉइड। तो इसीलिए ये वॉइड कौन करता है, सीशियम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सो अगर मैं क्लोरीन देखूंगी, सो इट इज 18 इंटू 18 इंटू 8 दैट इज 1, और सीशियम जो है वो भी 1 है, तो इनका फॉर्मूला क्या बनता है, 1:1। ठीक है, नाउ अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है Cl माइनस का, Cl माइनस का, अभी Cl माइनस यानी कौन सा एटम है, ये सेंटर वाला, दिस इज Cl माइनस। तो ये जो Cl माइनस है वो कितने इससे सराउंडेड है, कितने एटम से सराउंडेड है, सॉरी Cl माइनस इज रेड वन। ये यहाँ पे कलर उल्टा दिया है, हियर देयर इज अ मिस्टेक, कलर आर गिवन उल्टा। यू कैन सी जो सेंटर में जाता है वो सीशियम है, सो ये सीशियम है तुम्हारा और ये जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया है, इन दिस फोटो इट इज गिवन उल्टा, ये इधर प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे। सो सिर्फ समझ जाओ, जो ब्लू ब्लू जो है दैट इज Cs प्लस एंड जो रेड वन है वो Cl माइनस है। सो ये जो ब्लू है सीशियम, it is surrounded by 1 2 3 4 5 6, so coordination number of cesium is 6, it is surrounded by 6 chlorine. So similarly coordination number of Cl minus, तो मैं ये वाला एटम कंसिडर करती हूँ, मैं यहाँ पे ना कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैं अलग यूज करती हूँ पेन। सी ये सेंटर वाला कंसिडर करते हैं, सो दिस इज अटैच्ड, दिस इज अटैच्ड विद दिस, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है,
इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, so how many? It is also attached with 8. Cesium जो है, it is attached with 8 chlorine, and Cl minus is also surrounded by 8 cesium, so coordination number of them is 8. तो जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा, you can see this is, ये बीच में cesium है, so it is surrounded by how many chlorines? You can see ना, it is surrounded by 8. It is surrounded by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So cesium is surrounded by 8 Cl minus, and Cl minus is surrounded by 8 cesium chloride. Now what is the relation between their cation anion and their edge length? So we already know एज बॉडी डायगोनल में कंसिडर करती हूँ. सो ये जो कॉर्नर है, इधर कौन है? क्लोरीन है, दिस इज द क्लोरीन. और सेंटर वाला जो होता है, सेंटर में जो है वो सीशियम है, RCS plus RCS plus. So this is nothing but the nearest distance D. ये हम लोग इसको भी D बोल सकते हैं. Now we already know for body centered 4R is equal to A root 3. But यहाँ पे Cl और Cs जो है वो 2 है, so मैं इधर divide by 2 करती हूँ, so it will become 2R, that is equal to A root 3 by 2. So D क्या होता है? अभी यहाँ पे ये जो D आ गया है, ठीक है, दिस इज अवर D, ये D का वैल्यू है. बट D इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ सीशियम. तो ये दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, R ऑफ CS प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस, दैट इज इक्वल टू A रूट 3 बाय 2. ओके, ऑल ऑफ यू. नाउ सीशियम के और हलाइड्स के जो कंपाउंड है, सीशियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, they all are following similar type of structure. फिर thallium chloride, thallium bromide, thallium iodide, thallium cyanide, they are also following the same type of structure. अगर अभी मुझे NaCl वाले जो structures अगर देखने हैं, who all are following rock salt type of structure? So वो जो compounds है वो है हलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड उसके अलावा AgCl, AgBr एंड CaO. सो ये सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं? रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर करेंगे, दैट इज जिंक ब्लेंड. Zinc blend. Now here in this structure you can see Zn2 plus cation will occupy void and S2 minus will make an arrangement. कौन सा अरेंजमेंट है ये? यू कैन सी इट इन पिक्चर एंड कैन टेल मी. इट इज FCC. कॉर्नर्स एंड फेस के सेंटर में है. एंड वॉइड कौन सा है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है. नाउ यू कैन काउंट हियर कितने वॉइड्स आ रहे हैं. 1, 2,
3, 4. So Zn2 plus occupy half tetrahedral voids. ठीक है, Zn2 plus is what? Half into 8 ना, क्यों? क्योंकि S2 माइनस FCC है, सो ये कितना होगा? 4 होगा। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं? डबल होते हैं, सो इट विल बी 8, तो 8 का हाफ यानी 4। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है? ZnS। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखूंगी यहाँ पे, S2 माइनस यू कैन सी हियर, मैं ये वाला S2 माइनस लेती हूँ, ठीक है, तो इट इज सराउंडेड बाय 4Na Zn2 इन इट्स मीन्स ये वाले क्यूब में, और ये जो दो है वो क्या रहेंगे? नीचे वाले यूनिट सेल में आएंगे। सो S2 माइनस इज सराउंडेड बाय 4Zn2 ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है S2 माइनस का, दैट इज 4। और अगर मैं Zn2 देखूंगी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सो यहाँ पे देखो Zn2 इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4, वो बनता ही 4 से है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। नाउ व्हाट आर द अदर कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर कौन कौन बनाता है? दैट इज CuCl, CuBr, Cui, cadmium sulfide, silver iodide, barium sulfide, they all have a zinc blend type of structure. Next is ionic solids of Ab2 type, fluoride type of structure, CaCl2. So you can see here CaCl2। तो अभी यहाँ पे कैसा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट इन पीरियोडिक टेबल। तो यूजुअली क्या होता है, जो नेगेटिव होता है वो अरेंजमेंट करता है, और जो पॉजिटिव होता है वो एटम्स का अरेंजमेंट करता है। बट सिंस हियर F माइनस इज स्मॉलर देन Ca+2, so therefore F minus occupy voids, और Ca+2 जो है वो अरेंजमेंट करता है, इट हैव द अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट है? देखो, इट इज हैविंग FCC अरेंजमेंट। और F माइनस जो है ये कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, all are occupied, you can see all are occupied here, all are occupied, total 8 है। So what we can write down is F minus occupy all tetrahedral voids। So F minus जो है वो 8 होगा, और Ca2 कितना है? 4 है। तो अभी ये दोनों का मैं रेशियो लेती हूँ, so this is 4 and this is 8, that is 1za and 2za, so formula क्या बनता है? CaF2, formula is CaF2। now we'll just check out the coordination number। तो ये जो है that is F minus, so coordination number of F minus, it is surrounded by 4 calcium, so it is 4, coordination number is 4 of fluorine। अभी कैल्शियम देखो, कैल्शियम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम,
नाउ सपोज मैं ये वाला कैल्शियम कंसिडर करती हूँ, ठीक है। सो इट इज सराउंडेड बाय 1 2 1 2 3 4। 4 इस तरफ, 4 ये तरफ है, और 4 इस तरफ भी रहेगा, बाजू में भी यूनिट सेल आएगा ना उसके 4। तो 4 और 4 कितने हुए, 8। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 and 8। नाउ दिस कंपाउंड्स, ये ऐसा जो टाइप का स्ट्रक्चर है, इट इज फॉर्म बाय ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोराइड, स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड, CuF2, CrCl2। so all these ionic compounds form fluoride type of structure. Next is antifluoride, ionic solid of A2B type, that is antifluoride type of structure, Na2O. So you can see here in this photo. Now Na2O जो है वो नॉर्मल है, यहाँ पे Na प्लस जो है that is smaller in size, it is cation, so it will go in void. और O2 माइनस जो है वो anion है, and it will make arrangement of atom. कौन सा अरेंजमेंट करेगा ये, FCC अरेंजमेंट करता है। यू कैन सी ये जो है वो O2 माइनस है, और ये जो है वो Na प्लस है, ठीक है। सो इट इज ऑक्यूपाइंग ऑल वॉइड्स, यू कैन सी टोटल 8 वॉइड्स है यहाँ पे, 8 के 8 वॉइड्स में Na इज प्रेजेंट, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Na प्लस। तो Na प्लस occupy all tetrahedral void. So therefore Na plus जो है वो कितना है, 8 है, और O2 माइनस जो है वो FCC है, so it is 4। so अगर अभी मुझे ये दोनों का स्टोइचियोमेट्री चेक करना है, तो दिस इज 8:4, दैट इज 2:1। so फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O। now we'll just check out their coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, Cn माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का, इट इज सराउंडेड बाय 4 SO2 माइनस, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। एंड ऑक्सीजन, अभी जैसे मैंने ये वाला ऑक्सीजन लिया, सो इट इज बॉन्डेड विथ 1 1 2 3 4, 4 on this side and 4 on this side, बाजू में भी यूनिट सेल रहेगा ना, so coordination number is 8। okay, so compounds like Li2O, K2O, K2S, Na2S, they form such types of structure, antifluoride structure। so यहाँ पे ionic compound में cation void में ही जाएगा और एनायन अरेंजमेंट ही करेगा। सिर्फ फ्लोराइड के केस में कैसा है, थोड़ा उल्टा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन। नाउ हियर इज द टेबल फॉर एंटायर सॉलिड्स, आयोनिक, सारे आयोनिक सॉलिड्स का ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। सो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव करके रखो, इसको पढ़ना है। अब मुझे और एक चीज बताना है कि ये जो मैंने जो कुछ भी ये वीडियो में कराया है, इट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, बट फिर भी ये टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं। जेई में तो पूछते ही है, बट नीट में भी पूछते हैं क्वेश्चन, इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और अभी मैंने जो कुछ भी करवाया है उसको तुम लोग को अच्छे से पढ़ना है, एंड देन तुम लोग क्या करोगे, पढ़ के आओगे, मैं तुम्हें नेक्स्ट लाइव लेक्चर में ओरल तो लूंगी ही,
बट जो कुछ भी नहीं समझ में आया है कॉन्सेप्ट्स, वो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो. ओके, सो ऑल ऑफ यू, आई विल स्टॉप हियर. बाय बाय, टेक केयर.